ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਹੀ ਆ ਸੈਟਅਪ ਫਾਈਲ, ਇਹਨੂੰ ਡਬਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰਵਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਡਬਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ? ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ, ਨੈਕਸਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਨੈਕਸਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਬਸ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਦੂਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਾ ਵਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਸਟਾਰਟ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਰ ਸਟੂਡੀਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਡੈਸਕਟਾਪ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਲਡਰ ਬਣਾਤਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਫੋਲਡਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਕੀ ਆ ਡੈਸਕਟਾਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਲਿਆ? ਉਹ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਡੈਸਕਟਾਪ ਦੇਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਡੈਸਕਟਾਪ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਉਹਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਐਪ ਤੋਂ ਕੰਮ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਹੜੀ ਕਰਨਾ ਸਟੂਡੀਓ ਸੀਗਾ 150 ਐਮਬੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਟਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦੂੰਗੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗੀ। 2-3 ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਐਡ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਰ ਸਟੂਡੀਓ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਪ ਆ ਦੇਖੋ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਸਿੱਧਾ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੋਊਗਾ ਓਪਨ। ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਉਸ ਪੀਸੀ ਤੇ ਨਾ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਜਿੱਥੇ ਵਿੰਡੋ 7 ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। 10 ਵਾਲੇ 'ਚ ਕਰ ਲਿਓ ਜਾਂ 11 ਵਾਲੇ 'ਚ ਕਰ ਲਿਓ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਤਾ ਨਾ 10 ਦਾ ਤੇ 11 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ 10 ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵਿੰਡੋ ਦਾ ਬਟਨ, ਵਿੰਡੋ ਬਟਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਵਿੰਡੋ ਬਟਨ ਇੱਥੇ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੀਨਸ ਉਹ 10 ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 11 ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ ਵਿੰਡੋ ਬਟਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਆਹੀ ਵਿੰਡੋ ਬਟਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਰਫੁਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਜਾਓ 7 ਆ। 7 ਤੇ ਨਾ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ, 10 ਜਾਂ 11 'ਚ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਸ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਹੀ ਲਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੇ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਨਕੈਟੀਨੇਟ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਕਨਕੈਟੀਨੇਟ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਵੈਰੀਏਬਲ ਦਿਓ, ਵੈਰੀਏਬਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸਾਈਨ ਕਰੋ, ਦੂਜਾ ਵੈਰੀਏਬਲ ਦਿਓ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸਾਈਨ ਕਰੋ। ਵੈਲਿਊ ਅਸਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਪੇਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੇਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਪੇਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਨਕੈਟੀਨੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਆ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਆ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਮਲਟੀਪਲ ਵੈਰੀਏਬਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਨਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਮਝਾਉਂਗੀ ਤਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਵਾ ਪਾਉਂਗੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੂਗੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ, ਕਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ, ठीक है। क्यों ये तो हैगा प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल जब तक नहीं करोगे तब तक समझ नहीं लगेगी, ठीक है। तो टाइम कड्डो ये लिए। हुण अगे हैगा मल्टीपल वेरीएबल। मल्टीपल वेरीएबल का मतलब हैगा बाई चांस सपोज कर लो मेरे को कई सारे वेरीएबल ने तो हरेक वेरीएबल नूं एक ही वैल्यू असाइन करनी है, तो इदां भी दे सकते जिवें आ इन्हां ने दित्ती हुई है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो इन्होंने की किया, आ इत्थे var1 नेम का बनाया वेरीएबल, फिर उन्होंने वैल्यू असाइन करती var2 की। var2 भी एक वेरीएबल है, var2 के अंदर वेरीएबल है। फिर इन्हों वैल्यू असाइन कर दी var3 की, तो var3 के अंदर वैल्यू असाइन करती ऑरेंज। हुण अगर जो इन्हों तीनों आपां प्रिंट करांगे तो तीनों का आंसर ऑरेंज ही आना। समझ आ रही है मेरी गल? हाँ, ठीक है। मतलब एक ही वैल्यू सारिਆਂ ਨੂੰ अरेंज करती। एक तो देने का तरीका इदा भी है, एंटर बटन क्लिक करवा के इदा भी दे सकते हैं ना। आप इनू कॉपी करो, कॉपी करवा के इत्थे मैं पेस्ट करवाता, इदा भी देने का तरीका है। बट ये आपको ज़्यादा कोड लिखना पऊगा। इदा भी दे सकते हो, इदा भी सही है। तो जो इन्होंने पहला दिता सी वो भी सही है। समझ आ रही है गल? फिर ये आ गए आप थले आ जाओ। बस इन्होंने मल्टीपल वेरीएबल के अंदर यही समझाया हुआ भी मल्टीपल वेरीएबल तुसीं किद्दां दे सकते हो। नंबर लिए भी इदा ही सेम हो जाना वा। नैक्सट करवा लो। वेरीएबल नेम, वेरीएबल के नेम बनाने की मैथड ने या की तरीके ने, ठीक है। वेरीएबल का नेम बनाना हो तो की आप फॉलो करते हैं। जूमिंग घट रही है, जिवें ये आओगे ना तो देखो इतने समझाया हुआ वा। मैं जूम करा, जिवें देखो की लीगल हैगा वा। वेरीएबल का नेम इदा दे सकते हो, स्पेस नहीं होनी चाहिए। मतलब इदा ना मैं लिखा माई फिर स्पेस पा के लिखा वैर। अगर मैं लिखना ही चाहती हाँ माई वैर तो मैं माई लिखूंगी, थले अंडरस्कोर लगा दूंगी,
ਅੰਡਰਸਕੋਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀ ਬਟਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਲਾਈਨ ਜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਟਾਈਪ ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਡਰਸਕੋਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਦਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਮਾਈ ਸਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰ ਲਿਖਿਆ ਵੈਰ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਪੂਰਾ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਦਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਬਣਾਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਦਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਡਰਸਕੋਰ ਪਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਮ ਫਿਰ ਅੰਡਰਸਕੋਰ ਫਿਰ ਵੈਰ, ਇਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਟ ਦੀ ਰੇਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਵਰਡ ਨੇ, ਕੀਵਰਡ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੀਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਝ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਰਡ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਨੇਮ ਦਾ ਮੈਂ ਵੈਰੀਏਬਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ, ਪੇਸਟ ਨੇਮ ਦਾ ਮੈਂ ਵੈਰੀਏਬਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਰਡ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਆਪ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਥੱਲੇ ਆ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਟਰੂ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਰਡ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਨੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਵੈਰੀਏਬਲ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆ ਇੱਥੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈਆਂ ਨਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਵੈਰੀਏਬਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਕੇਸ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਆ, ਕੇਸ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਏਜ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਇੱਦਾਂ ਸਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਅਲੱਗ ਵੈਰੀਏਬਲ ਆ, ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਵੈਰੀਏਬਲ ਆ, ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਵੈਰੀਏਬਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਕੇਸ ਸੈਂਸਿਟਿਵ, ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਰੀਏਬਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ। ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੈਰੀਏਬਲ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸਾਈਨ ਕਰੋਗੇ, ਟੈਕਸਟ ਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਿੰਬਲ ਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ, ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ, ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾ ਦੂਗਾ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਆ, ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੈਰੀਏਬਲ ਦਾ ਕੀ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਰੀਏਬਲ ਕੈਨ ਸਟੋਰ ਡਾਟਾ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਰੀਏਬਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਐਂਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਕੈਨ ਡੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗ, ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੈਰੀਏਬਲ do not need to be declared with any particular type and can even change after type after they have been set, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਥੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਮਾਈ ਵੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 30 ਪਾਤਾ ਤੇ ਨੂਮੈਰਿਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਵੈਰੀਏਬਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅਦਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਿਖੀਏ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਦੱਸਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇੰਟ ਟਾਈਪ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵੈਰੀਏਬਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਪੇਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਅਗਰ ਅਦਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਪੈਨਸਿਲ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਟਾਈਪ ਦੱਸੂਗੀ ਵੀ ਇੰਟ ਆ, ਇੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗੀ ਸਪੋਜ਼ ਏ ਨੇਮ ਦਾ ਵੈਰੀਏਬਲ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲਗਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸਾਈਨ ਕਰੂੰਗੀ, ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ 5 ਅਸਾਈਨ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟ ਹੈਗਾ, ਇੰਟ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੰਟ ਉਹਦੀ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਆ, ਕਿਹਦੀ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਆ, ਏ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਵੈਲਿਊ ਅਸਾਈਨ ਹੋਣੀ। ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀਏਬਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵੈਰੀਏਬਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਮੰਨ ਲੂਗਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਵੈਰੀਏਬਲ ਦੀ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਮੰਨ ਲੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਟੈਕਸਟ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਟੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਦੀ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਆ, ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਟਾਈਪ ਦੀ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਆ, ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮਾਈ ਵੈਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਸੈਲੀ ਲਿਖਤਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ 30 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਨੂਮੈਰਿਕ ਮੰਨੂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨੂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੈਰੈਕਟਰ ਮੰਨੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਟੂ ਯੋਰਸੈਲਫ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਆ ਇਹਦੀ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ ਆ ਸਟਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਜੋ ਆ ਸਮਝ ਆਇਆ ਨਾ ਕੀ ਚੀਜ਼, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਸਿਕ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ, ਇੰਨੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਨੂਮੈਰਿਕ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਇੰਟੀਜ਼ਰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਵੈਲਿਊ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਅਗਰ ਵੈਲਿਊ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਲ ਲਿਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ
ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਥੱਲੇ ਹੌਟ ਰੂਮ 'ਚ ਹੀ ਲਗਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ 5-6 ਮਿੰਟ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ठीक है, चलो अब यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, बेसिक डाटा टाइप यहाँ पे आपको देखो कितने टाइप के, 5 टाइप के बेसिक डाटा टाइप मिलेंगे। एक है न्यूमेरिक। न्यूमेरिक का मतलब है कि जैसे आपने क्या किया, कोई वेरिएबल बनाया, जैसे मैंने वैर नेम का वेरिएबल बनाया, वैर नेम का वेरिएबल बनाने के बाद मैंने क्या किया, उसके पीछे उसको वैल्यू असाइन कर दी 10, तो न्यूमेरिक टाइप का डाटा टाइप बन गया। लेकिन अगर 10 के पीछे मैंने लिख दिया एल, तो वो इंटीजर टाइप का डाटा टाइप बन गया। अच्छा, दोनों के अंदर फर्क क्या है, जो न्यूमेरिक वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू में आप फ्रैक्शन वाली वैल्यू लिख सकते हो। फ्रैक्शन वाली वैल्यू का मतलब है 1/2 लिख सकते हो, 2/3 लिख सकते हो। लेकिन जो आपके पास इंटीजर टाइप डाटा टाइप है, इसके अंदर आप फ्रैक्शन वाली वैल्यू नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। फिर नीचे आ जाओगे कॉम्प्लेक्स वैल्यू, कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप। कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप में आओगे तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं हम, जैसे 9 + 3 आई। आई का मतलब यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट बनाया हुआ है। ठीक है, मतलब इसके अंदर हम कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पे ऐसा भी कुछ वेरिएबल बनाना हो तो हम बना सकते हैं। कैरेक्टर के लिए बनाना तो हम कैरेक्टर के लिए स्ट्रिंग का यूज कर लेते हैं। अगर आपने डबल कोट्स एसी का रिमोट, उधर वाले एसी का रिमोट अलग होना, उत्थे ही पिया होना, ये नहीं लगना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कैरेक्टर, तो कैरेक्टर के अंदर अगर हम डबल कोट्स के अंदर कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं तो वो स्ट्रिंग मान लेगा, वो कैरेक्टर टाइप का डाटा टाइप बन जाएगा। लॉजिकल का मतलब है कि जैसे हमने किसी के सामने ट्रू फॉल्स लिख दिया तो वो बूलियन बन जाएगा, या लॉजिकल हमारा डाटा टाइप बन जाएगा। लॉजिकल डाटा टाइप में 2 ही वैल्यू होती है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ठीक है, 0 मतलब फॉल्स, 1 मतलब ट्रू। ठीक है, 0 या फॉल्स वाली वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो जैसे आगे इसने यूज करके दिखाया होगा, एक यहाँ पे देखो आपको क्या बता रहा है कि वी कैन यूज द क्लास फंक्शन टू चेक द डाटा टाइप ऑफ द वेरिएबल। अगर किसी भी वेरिएबल को हमने बनाया हुआ है, अब उसको पता करना है कि इसकी कौन सी डाटा टाइप है, न्यूमेरिक है, इंटीजर है, कौन सी है, तो कह रहा है कि क्लास फंक्शन का यूज कर लो। क्लास फंक्शन का यूज करोगे वो आपको बता देगा। जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एक्स, एक्स को यहाँ पे वैल्यू ऐसी पॉइंट वाली असाइन कर दी। अब नहीं पता ना कि ये न्यूमेरिक टाइप का है कि इंटीजर टाइप का, तो यहाँ पे लिखा क्लास एक्स। अब क्लास के अंदर एक्स वाली वैल्यू प्रोवाइड करवा दी, तो मतलब इसका डाटा टाइप हमें पता लग जाएगा। अगर हम इसको रन करके देखते हैं तो हमें पता लग जाएगा। जैसे रन करेंगे तो देखो यहाँ पे बता रहा है न्यूमेरिक टाइप, और इसी के पीछे एल लगा दिया, देखो यहाँ पे एक्स वैल्यू असाइन की और उसके पीछे एल लगा दिया, तो ये इंटीजर बन गया। कॉम्प्लेक्स के लिए देखो यहाँ पे 9i + 3 लगा दिया, ऐसा कुछ लगा दिया, तो उसको अब बता देगा कि कॉम्प्लेक्स है। इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਿੰਗ, ਸਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਇਦਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਟਿੰਗ ਦੱਸ ਦੂਗਾ ਜਾਂ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੱਸ ਦੂਗਾ। ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, तो उन्हें दस देना की है वो लॉजिकल है। ठीक है, ये डाटा टाइप पता करने के लिए। फिर से हम यहाँ पे आते हैं, तो ये डाटा टाइप पता लगा ना क्या क्या चीजें। इसका प्रैक्टिकल आर में तो करने की जरूरत नहीं है ना, यहीं से पता लग गया क्या क्या चीजें। ठीक, फिर हम नीचे आ जाते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिकल टेस्ट, वो आपके उसमें डेट शीट में आया होगा ना, इसका क्या पता प्रैक्टिकल हुआ कि नहीं होगा। नहीं है प्रैक्टिकल, तो बस थ्योरेटिकल है, तो आपने बस बना के उनको देना है, कॉपी में लिख देना है, इसका कुछ आपसे पूछा नहीं जाएगा। अब न्यूमेरिक के अंदर जाओगे ना, तो न्यूमेरिक के अंदर 3 टाइप के डाटा टाइप इसने बताए हुए हैं, 3 टाइप। ठीक है, न्यूमेरिक के अंदर 3 टाइप है। पहला तो न्यूमेरिक है, दूसरा है इंटीजर, तीसरा है कॉम्प्लेक्स। क्योंकि हम तीनों के अंदर, इसके अंदर भी नंबर असाइन कर रहे थे, इसके अंदर भी दे रहे थे, इसके अंदर भी दे रहे थे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 3 टाइप के, जैसे यहाँ पे देखो समझाया हुआ है। फिर नीचे आ जाओ, फिर न्यूमेरिक के बारे में समझाया हुआ है कि न्यूमेरिक के अंदर हम पॉइंट वाली वैल्यू दे सकते हैं और ऐसी वैल्यू दे सकते हैं, फ्रैक्शन वाली वैल्यू भी दी जा सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद इंटीजर के बारे में समझाया हुआ कि अगर हम पीछे एल लगा देंगे तो समझ ये पता लगेगा कंप्यूटर को कि ये इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, अगर हम एल को हटा देते हैं तो वो न्यूमेरिक वैल्यू मान लेगा। बस फिर कॉम्प्लेक्स के बारे में समझाया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ आई एज ए इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसको भी बता दोगे तो कॉम्प्लेक्स बताएगा। अच्छा, टाइप कन्वर्जन बताया हुआ है। टाइप कन्वर्जन का मतलब है कि बाई चांस सपोज करो मेरे पास कोई न्यूमेरिक वैल्यू, उस न्यूमेरिक वैल्यू को मैंने कन्वर्ट करवाना है इंटीजर में। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे आ जाते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं।
डाउनलोड तो हो गया, फिनिश करूँगी, हो गया। इन्हें क्लिक करवा के आर स्टूडियो चलानी आती की लोड पैंदी डाउनलोड करनी सीधा क्लिक कर लो, स्टार्ट हो जाऊंगा। तो जैसे हम यहाँ पे बनाते हैं, मैंने जैसे लिख दिया नेम, और नेम के अंदर मैंने वैल्यू असाइन कर दी, यहाँ पे देखिए सपोज, ठीक है। अब ये मैंने सपोज इंटीजर टाइप का बनाया, या चलो नेम की जगह स्पेस इतनी तो देनी पैनी है, इन्हों के सामने इतना दे दो तो वधिया सही लगता वा, ठीक है। तो हुण मैं चाहनी ये है अपने को न्यूमेरिक, इनू मैं बनाना चाहनी इंटीजर, ठीक है। अगर यदि मैं क्लास पता करा, इतों जाके मैं कह दिनी वैर की क्लास दस्यो मैंने, वैर की क्लास की हैगी, इनू रन करने लिए सिलेक्ट करो, कंट्रोल एंटर की कमांड दूंगी, इतने अपन पता लग गया भी न्यूमेरिक। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਨਵਰਟ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿੰਟੈਕਸ ਦੱਸਿਆ, ਦੇਖੋ ਸਿੰਟੈਕਸ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਲਿਖੋ ए नाम ਦਾ ਇੱਕ वेरिएबल बनाओ, ए नाम ਦਾ वेरिएबल बना के एज लिखो, एज एक फंक्शन होगा, मैथड होगा, वो फंक्शन के अंदर कह दो डॉट न्यूमेरिक एक्स दे दो। आ डॉट न्यूमेरिक का मतलब हैगा, इत्थे देखो इन्होंने इंटीजर बनाया हुआ वा, जिवें मैं अगर इत्थे बनावां इहदे विच पा लैंदी हां, इत्थे मैं लिख दिंदी हां नवा वेरिएबल क्रिएट करना पैना, नवे वेरिएबल दे अंदर ही ओहदी वैल्यू जानी, जिवें इत्थे कहता मैं एज इंटीजर, आ टैब बटन दब दूंगी, जो भी शो कर रहा है, हुण इत्थे मैं लिखता वैर। हुण आपां ए दा डाटा टाइप पता कर लैंदे हां, मैं इत्थे लिखिया क्लास, ए दा डाटा टाइप दस्सो, ए दा डाटा टाइप की हैगा, देखो आ गल समझ आई तुहानूं की होया। हाँ वैल्यू उन्हें इंटीजर च कन्वर्ट कर लिया, तो मैं कहता भी आज नवा वेरिएबल क्रिएट किया, देखो की लिखिया एज इंटीजर, ते किनू इंटीजर बनाना वा, वैर नू, वैर दे अंदर किहड़ी वैल्यू पई हुई आ, न्यूमेरिक वैल्यू पई हुई है, तो उन्हें की किया इनू इंटीजर बना के ए दे अंदर स्टोर करता। हुण ए दे अंदर किहड़ी वैल्यू स्टोर हुई, इंटीजर वाली वैल्यू स्टोर हुई। हुण ए नू जदों प्रिंट करवावांगे, हुण इन्हां सारिआं नू आपां रन करदे हां, कंट्रोल एंटर दी कमांड देवांगे, इत्थे देखो आ गया, इत्थे जदों आपां रन किया आ देखो आ गया न्यूमेरिक, इत्थे जदों आपां रन किया इत्थे देखो आ गया इंटीजर। समझ आई गल, हुण पता लग गया आपां इत्थे की कर रहे हैं। हुण अगर बाई चांस सपोज करो मैनू की करना, मैं इत्थे अगर इनू स्ट्रिंग दे विच कन्वर्ट करा, वैसे स्ट्रिंग तो है नहीं, बट अगर इनू मैं चाहवां स्ट्रिंग दे विच कन्वर्ट करना, तो फिर मैं इत्थे लिखूंगी बी लिख के मैं इत्थे एक वैल्यू असाइन किया, मैं इत्थे लिखिया, मैं इत्थे लिख दिंदी हां स्ट्रिंग लई आपां की यूज़ करदे हां, मैं अगर इत्थे लिखदी हां स्ट्रिंग या कैरेक्टर आपां यूज़ करदे हां, CH आ कैरेक्टर आ गया, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं वैल्यू असाइन करती ए दी। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਨੂਮੈਰਿਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ भी नहीं पता ਉਹਨੇ कन्वर्ट करना कि नहीं करना है, दसूगा कि नहीं दसूगा सही। मैं इत्थे लिख दिंदी हां क्लास, क्लास लिख के आ बी आपां लिख दिंदे हां, बी लिखण तो बाद आपां इन्हां सारे नूं रन करी, आ ਇਹਨੂੰ ही रन करदे हां, कंट्रोल एंटर किया, आ कैरेक्टर दे विच भी कन्वर्ट करता। समझ आई गल, ठीक है। हुण जिहड़ा अपने को लिखा होया ना 25, हुण आ थल्ले आंदे आंदे इत्थे आ कैरेक्टर दे विच कन्वर्ट हो गया, आ गल समझ लगी कि नहीं, इदां कन्वर्ट आपां करदे हां, इहनूं आपां कहंदे टाइप कन्वर्जन। वैल्यू नहीं आउगी, किहदी वैल्यू, इत्थे क्लास फंक्शन लगाया ना आपां ने, क्लास फंक्शन दा काम की हैगा, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਦੱਸਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੈਲਿਊ ਆਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ b ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਓ ਨਾ, b ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਊਗੀ। b ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਓ, 25 ਆ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਡਬਲ ਕੋਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, क्यों, क्योंकि इंटीजर आ, कैरेक्टर आ। क्लीयर हुई गल मेरी, ठीक है। तो इदा आप टाइप कन्वर्जन कर लें कितने भी अगर अपन जरूरत पैंती है तो। फिर थले आने नैक्सट चलते हैं अगे, अगे देखो इतने आ गया मैथ फंक्शन। मैथ के कुछ ये अंदर फंक्शन होंगे, तुहाडी भी बुक के अंदर कई सारे फंक्शन डिफाइन किए हुए, सम मिन मैक्स बहुत सारे फंक्शन, ठीक है। जिमें इतने आप आ जाने, जिमें आप प्लस करना हो तो नॉर्मली आपको पता 10 लिखो 5 लिखो प्लस हो जाता वा, ठीक है। 10 - 5 लिखोगे तो जोड़, ठीक है, माइनस हो जाता वा। आइदा मैक्स लिखोगे तो इन्हों के मैक्स वैल्यू पता लग जानी है, मैक्स नाम का फंक्शन बनाया हुआ। जिमें आप ये आ जाने, इनू आप इरेज कर दिए थोड़ी देर लिए, मैं इतने जिमें लिखिया ए, ठीक है, तो ए दे अंदर मैं वैल्यू असाइन कर दी। अच्छा बाई चांस सपोज करो ए दे अंदर मैंने बहुत सारी वैल्यू असाइन करनी है, जिमें मैं चाहनी हाँ भी 1 तो लेके 10 तक नंबर मैंने कुछ असाइन करनी है,
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਅਸਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੌਮੇ ਲਗਾ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰਨ ਕਰਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੀ ਜਰਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਗਲਤ ਆ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੇਰੀਏਬਲ ਥੋੜਾ ਨਾ ਲਵਾਂਗੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਆ ਇਦਾਂ ਸੀ ਲਿਖੋ, ਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ, ਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੈਕਟਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਪਾ ਦਿਓ, ਕੋਮਾ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਪਾਣੀ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਉਨੀ ਵੈਲਿਊ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਊਗੀ। ਕੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ठीक है, अगर 1 तो लेके 10 तक प्रिंट करवाना हो तो इदा भी दे सकते हो। मैं तो कह देनी 1 तो स्टार्ट करी, आ कॉलन पाके मैं कहता 10 तक प्रिंट करी, 1 तो लेके 10 तक। बस इन्हों सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करवा के कंट्रोल एंटर की कमांड लाऊंगे, 1 तो लेके 10 तक गिनती प्रिंट कर दी। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, 1 लिखा, 1 लिखने तो बाद कॉलन लगाया बीच, फिर 10 लिखा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि आप 12 से स्टार्ट करना, 12 से लेके यहाँ तक 50 तक गिनती प्रिंट कर देना, तो आप सिलेक्ट करोगे, फिर से यहाँ पे कंट्रोल एंटर करोगे तो देखो यहाँ पे 12 से स्टार्ट करके 50 तक गिनती प्रिंट होगी। क्लियर है? अगर बहुत सारी वैल्यू असाइन करनी हो तो इतना असाइन कर सकते। अच्छा, अगर कैरेक्टर वाली वैल्यू असाइन करनी हो तो कैरेक्टर वाली असाइन करनी हो तो इदा कहांगी, जिमें ए कहता मैं, फिर मैं इतने कहता बी प्रिंट करी, फिर मैं इतने कहता सी, ठीक है, फिर मैं इतने कहता डी, इदा करके मैनू देना पैगा। हम 3 में देता, इतने अगे वाली तो रह गया, मैनू लगता ना लगाना कोड, डबल कोड रह गया। हम सही, हम इन्हों पर रन करिए, सिलेक्ट किया, कंट्रोल एंटर की कमांड दोगे, नहीं कोई चीज़ कुछ होर लग गया इतने ए की जगह पे, बी, अच्छा बी ते डबल कोट्स लग गए। किमें लेंथी, फिर वैल्यू भी तो अपन बहुत सारी असाइन करनी है, वैल्यू भी तो अपन बहुत सारी असाइन करनी है, लेंथी तो होगा ही। ठीक है, अगर बहुत सारी वैल्यू असाइन करनी हो तो इतना कुछ यूज करें। मैं लगता क्लियर है। अगे चलिए, फिर अगे हम आप फंक्शन बारे पढ़ते हैं। अगे देखो, जिमें मिन ते मैक्स फंक्शन है, हूँ जिमें मैनू पता करना हो ये ही आ जाते हैं। इतने मैं की करती हाँ ना, कैरेक्टर की जगह पर नंबर असाइन करती है। मैं इतने कहता आ इदा नंबर, कॉमा लगा के इदा नंबर देता, कुछ नंबर दे देंगे। हुण ये नंबर दे विच ना मैनू मिनिमम वैल्यू पता करनी है, मिनिमम वैल्यू केड़ी है, तो मैं इत्थे लिखिया मिन फंक्शन, मिन दे अंदर आ वाला ए वाला वेरीएबल देता। ठीक है, हुण जदों इहनूं रन करोगे तो इहने मिनिमम वैल्यू पता करनी है, मिनिमम वैल्यू इहदे विच केड़ी है, कहंदा मिनिमम वैल्यू हैगी 23। ठीक है, अगर मैं इत्थे किसी नूं 0 कर दिंदी हां, इत्थे मैं 0 करता सपोज, हुण इहनूं सिलेक्ट करवा के जदों रन करांगे तो हुण 0 0 आपां नूं दसूगा 0 आ मिनिमम। इदा ही मैक्सिमम फंक्शन है, MAX लिखोगे, ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, ए दे दोगे तो उन्हें मैक्सिमम वैल्यू दसनी है। अपन मैक्सिमम वैल्यू केड़ी है, कंट्रोल एंटर करोगे तो मैक्सिमम कहना 85 है। समझ आ रही है गल? ठीक है, तो इदा मिन एंड मैक्स फंक्शन लगाया जा सकता। फिर ये अंदर आ जाने हैं, थले आ जाओ, देखो शॉर्ट SQRT फंक्शन दिता होया, स्केयर रूट कड्ढना होवे, जिमें मैं 16 लिखा, 16 का मैनू स्केयर रूट पता करना होवे, जिमें आप इत्थे की करते हैं कि वेरीएबल बना दें। ठीक है, इत्थे मैं जिमें बना लिया बी दे अंदर मैं कहता भी आ मेरे को ना 144 आ, तो इसका स्केयर रूट मैंने पता करना, तो मैं लिखूंगी SQRT फंक्शन का नेम आ, ब्रैकेट स्टार्ट करूंगी, मैं दे दूंगी बी, देन तो बाद हुण इहदा स्केयर रूट मैनू पता करना, सिलेक्ट करवाओ, कंट्रोल एंटर करोगे तो 12 होंदा इहदा स्केयर रूट। ठीक है, अगर मैं इत्थे कह दिंदी हां भी चलो मैनू सपोज 4 का पता करना, तो 4 का पता कर दूंगा, 4 का जो भी स्केयर रूट होगा। ठीक है, अच्छा मैं इत्थे हुण एक चीज़ ट्राई करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ भी अगर आप सी के अंदर वैक्टर के अंदर बहुत सारी वैल्यू दे दईए फिर वो की करूँगा, आप चैक करते हैं। ठीक है, मैं इत्थे बनानी हाँ सी के अंदर मैं कहता 44 का पता कर ली, तो 144 का पता कर ली, 121 का पता कर ली, तो 163 का पता कर ली, 8 का पता कर ली, इन्ने का पता कर ली। हुण मैं बी दिता हुआ देखती हाँ की करता, इनू सिलेक्ट करो, कंट्रोल एंटर की कमांड दूंगी, आलो उन्होंने का भी पता करके आप दस, तो बहुत सारी वैल्यू का कट्ठे पता करना तो कट्ठे भी पता लग जाना। क्लियर है? फिर चलते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, नीचे आ जाओ। अब इसके बाद एक ABS फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, ABS फंक्शन का काम क्या है ना, ये रिटर्न करता है आपको पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, ये रिटर्न आपको करेगा पॉजिटिव वैल्यू, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना ABS
फिर उसके बाद माइनस लिखा, माइनस के अंदर लिखा 0.7, ठीक है। तो इसने मुझे लगता है 4 प्रिंट किया होगा, ठीक है। जैसे हम इसको करके देखें क्या, फिर पता लगेगा ना। हम इसको दो सेव करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आके मैं क्या करती हूँ ना, इसको वेक्टर नहीं देती हूँ, इसको कोई हम पॉइंट वाली वैल्यू साइन करते हैं। मैंने इसको बोला -4.6, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखते हैं ABS, ABS नाम का फंक्शन मतलब ABS है ना, और इसको हम सिलेक्ट करके रन करते हैं। तो ये देखो, ये पॉइंट मतलब पॉजिटिव वैल्यू आपको निकाल के देगा। आप कोई अगर नेगेटिव वैल्यू कोई लिखते हो ना, तो आपको पॉजिटिव वैल्यू निकाल के देगा, ठीक है। यहाँ पे हमने माइनस में लिखा हुआ है ना वैल्यू, ABS फंक्शन का काम है कि वो आपको पॉजिटिव में वैल्यू निकाल के देगा, ओनली जस्ट इतना सा काम, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसकी रकम को बड़ी कर दूँ, सिलेक्ट करवा दूँ, कंट्रोल एंटर कर दूँ, तो पॉजिटिव में दे रहा है, ठीक है। जस्ट इतना सा काम। फिर से हम इस पे आते हैं, नीचे आ जाते हैं, आगे लिखा हुआ सीलिंग एंड फ्लोर फंक्शन, ठीक है। सीलिंग एंड फ्लोर फंक्शन एक्सेल में भी समझाया गया था, यहाँ पे भी सीलिंग एंड फ्लोर का क्या मतलब है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे सीलिंग का मतलब होता है छत और फ्लोर का मतलब होता है फर्श, ठीक है। तो सीलिंग से आप ये पता कर सकते हो कि जो भी हम इसको वैल्यू देने वाले हैं ये बढ़ा के हमें वैल्यू देगा, और फ्लोर का मतलब है वो हमें कम करके देगा, ठीक है। जैसे होता क्या है कि मैथ में रूल होता है कि पॉइंट के बाद अगर 5 के बराबर या 5 नंबर मिल रहा है तो वो आगे वाले नंबर के अंदर एक प्लस कर दिया जाता है, होता है ना ऐसा। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी कुछ ऐसे होने वाला है। जैसे यहाँ पे देखो सीलिंग लगाया, ठीक है। अब सीलिंग लगा के किया क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट, फिर भी इसने देखो 2 में कन्वर्ट कर दिया ना सीलिंग, ये 5 तो है नहीं। आप इन्हें ट्राई करके देखते हैं, आप अपनी फाइल के अंदर ट्राई करते हैं। ਇਹਨੂੰ मैं माइनस नहीं कर दी, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ हटा ਦਿੰਦੇ हैं, ਇੱਥੇ ट्राई करते हैं। मैं ਇੱਥੇ लिख दी हाँ सीलिंग, सीलिंग लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट की, मैं कहता बी, ਹੁਣ देखते हैं रिजल्ट की दूगा। ਆਪਾਂ सिलेक्ट किया, एंटर बटन क्लिक करवाया, 42 ही दिता, नहीं 64, इतने देखो 64 करता, ठीक है। अगर मैंने 5 कर दी तो भी मैंने लगता 64 ही आना चाहिए, 64 ही आया। तो अगर आप इनू घटा लें, मैं सपोज करता भी 4, हम भी 64 ही आऊगा, हम भी 64 ही आ रहा। फ्लोर च उन्हें घटा देना, मैं इतने लिखनी आ फ्लोर, ब्रैकेट स्टार्ट किया, आप इतने बी दे देने, ये उन्हें घटा देना, सिलेक्ट कंट्रोल एंटर करो, आलू घटाता 4 की जो इतने की करा 6 और 6 कर दे, ठीक है। अच्छा एक चीज़ हो रहा, जिमें इतने ना मैं पॉइंट तो बाद 1 डिजिट दिता होया वा, तो ओनली इनू कन्वर्ट कर रहा वा। अगर मैं इतने एक डिजिट होर दे देवां, मैं इतने सपोज कह देनी 62, तो हुण इन्हां दोनों ते असर करूगा, इन्हां दोनों दे विच प्लस करूगा, जो भी प्लस करूगा, ठीक है। या कह लो भी तिना दे विच करूगा, क्योंकि ये विच प्लस करन नाल तां ये बढ़ ही रहा सीगा, ठीक है। मैं जिवें इनू रन करके देखदी हां, फिर तुहानूं पता लगदा। कंट्रोल एंटर करो, जिवें आ देखो इत्थे नहीं वही है सेम टू सेम, 9 6 एक मैं फिल करती हूँ, सेम ही दिखा रहा है, कोई फर्क नहीं आएगा, मतलब आप पीछे वाले तो कोई फर्क नहीं आएगा। उसने पहले को ही करना है, चाहे जितनी वैल्यू आप दे दो, ठीक है। मुझे लगा शायद इसके अंदर भी प्लस कर दे, ऐसे ही समझ लो कि जो एक नंबर को ही उसने बढ़ाना है, मतलब यहाँ पे जो नंबर है ना उसी नंबर को बढ़ाया जाएगा। मैं ये सोच रही थी कि क्या पता ऐसा हो कि जैसे यहाँ पे अगर मैं 2 वैल्यू लिख दूँ तो इनको भी बढ़ा दे, जैसे यहाँ पे 500 लिखा हुआ है ना, तो ये 500 को और बढ़ा दे, ठीक है। मैं ऐसा समझ रही थी, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। ये समझ में आ गया ना, ठीक है। नीचे चलते हैं आगे, इसके अंदर बस आगे यही मैथ फंक्शन दे रखा हुआ है, उसके बाद नेक्स्ट करवा लो। अच्छा और भी इसके फंक्शन है, लेकिन वो फंक्शन कल मैं अपनी कॉपी में लिख के लेके आऊँगी, फिर मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। मैंने कॉपी में लिख के रखा हुआ है, और भी आपकी बुक में जो फंक्शन है उन बुक से निकाल के फिर आपको समझाऊंगी, उसके अंदर और भी फंक्शन दे रखे हैं। जैसे स्ट्रिंग में आ जाओ, स्ट्रिंग के फंक्शन है कुछ,
जैसे स्ट्रिंग के लिए पहले नॉर्मल बताया कि हम लिख लेते हैं, ठीक है। फिर नॉर्मल बताया कि अगर स्ट्रिंग स्टोर करना हो तो हम वेरिएबल देके स्टोर कर लेते हैं। फिर यहाँ पे बताया मल्टीपल, अगर पैराग्राफ ही आपको स्टोर करना है तो यहाँ से कॉमा स्टार्ट करो और लास्ट में जाके बंद करो, स्टोर हो जाएगा, ठीक है। फिर नीचे आ जाओ, नीचे यहाँ पे बताया एक कैट नेम का फंक्शन यूज कर रहा है। कैट नेम का फंक्शन का क्या यहाँ पे यूज है, कह रहा है इफ यू वांट द लिंक लाइन ब्रेक टू द इंसर्ट एट द सेम पोजीशन एज इन द कोड यूज कैट फंक्शन। अच्छा, अगर आप चाहते हो कहीं पे लाइन ब्रेक हो जाए तो फिर आप क्या करोगे, कैट फंक्शन का यूज करोगे, ठीक है। जैसे इसको हम ट्राई टू योरसेल्फ पे चलते हैं तो आपको पता लगेगा क्या करना है। जैसे अगर हम कैट का यूज ना ही करें तब क्या करेगा ये, तब एक लाइन में दिखाएगा क्या। यहाँ पे तो रन ही बहुत देर से कर रहा है। मैं इसको कॉपी करती हूँ, कॉपी करके हम अपने कोड में आ करते हैं, यहीं पे पेस्ट करते हैं। पेस्ट करवाने के बाद हम बोल देते हैं str बोल के हम इसको सारे को रन कर लेते हैं। सिलेक्ट करवाया, कंट्रोल एंटर की कमांड दी तो यहाँ पे देखो रन, देखो यहाँ पे पूरा एक लाइन में है, ठीक है। अगर मैं चाहती हूँ कि लाइन ब्रेक हो तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कैट। कैट लिखने के बाद मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, str, ठीक है। सिलेक्ट करो, एंटर बटन क्लिक करवा दोगे तो अब लाइन वाइज। अच्छा, उसको कैसे पता लग रहा है कि कहाँ से ब्रेक करना है, वो यहाँ तक देख रहा है कि यहाँ तक आपने कॉमा लगाया, यहाँ तक कॉमा लगाया, फिर यहाँ से अलग किया। तो अगर मैं यहाँ पे एंटर बटन क्लिक करवा लूँ, एंटर बटन क्लिक करवा के यहाँ पे कॉमा लगा लूँ, या चलो मैं कुछ नहीं लगाती, फिर ये क्या करेगा, वहीं से जहां से आप एंटर बटन क्लिक करोगे ना, जैसे आपने टेक्स्ट लिखा हुआ वैसे ही आपको प्रिंट करके दिखा देगा। तो आप जहां से चाहते हो लाइन ब्रेक हो, आपको टेक्स्ट ही वैसे लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे चाहते हो तो यहाँ पे ऐसे आपको टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। तो ये अलग लाइन में, ये फिर आपका अलग लाइन में जाएगा, ये फिर आपका अलग लाइन में जाएगा, सभी अलग अलग लाइन में जाएंगे आप, ठीक है। फिर से आ जाते हैं नेक्स्ट इस पे, नीचे आ जाओ। आगे क्या बताया, स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ पता करनी हो तो यहाँ पे बोल रहा है एन कैर नेम का एक फंक्शन यूज किया जाएगा। एन कैर नेम का फंक्शन यूज करोगे तो लेंथ पता लग जाएगी। लेंथ का मतलब जैसे मेरे नेम के अंदर 5-6 कैरेक्टर है, फिर मैंने अगर स्पेस डाल के लिख दिया मौर्य तो कितने कैरेक्टर है वो गिनती कर ले, 1 कैरेक्टर है, 2 कैरेक्टर है, 3 कैरेक्टर, तो एन कैर नाम का फंक्शन यूज करेंगे। जैसे हम यहीं पे यूज कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ी देर के लिए हटा दें। हम यहाँ पे बोल देते हैं NCHAR कैर, एन कैर फंक्शन लगा के मैंने बोला STR नाम का जो वेरिएबल बताना लिखा हुआ है उसको बताना कितने कैरेक्टर हैं इसके अंदर। तो हम इसको रन कर लेते हैं, सिलेक्ट करवाया, कंट्रोल एंटर की कमांड देंगे तो देखो बोला 125 है, ठीक है। कैरेक्टर की गिनती करेगा। जैसे इसको मैं थोड़ा सा रिड्यूस कर देती हूँ, कम कर देती हूँ तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा अपना नेम, मैंने लिखा कविता, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट करवा के कंट्रोल एंटर करोगे, 6 कैरेक्टर है। अगर मैं यहाँ पे स्पेस भी डाल दूँ, एक स्पेस भी डाल दिया, अब 7 कैरेक्टर आने चाहिए। एंटर बटन क्लिक करोगे 7 कैरेक्टर आने। और अगर यहाँ पे मैं फिर मौर्य भी लिख दूँ तो फिर उसके आगे के सभी कैरेक्टर को काउंट करके आपको बता देगा जी। अगर इतने नंबर पाता, नंबर का भी मैंने लगता शो कर देना चाहेगा, बट ये स्टिंग ਲਈ ਆ, ਸਟਿੰਗ ਲਈ ਕਾਊਂਟ ਕਰੂਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਨੰਬਰ ਲਈ ਕਰਨਾ ਕਾਊਂਟ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੈਂਥ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੰਨੀ ਆ ਤੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਵਾਨੀ ਆ ਤਾਂ ਮੇ ਵੀ ਫਿਰ ਐਰਰ ਦੱਸੇ, ਗਲਤ ਆ ਜੀ। ਨੰਬਰ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਉਹਨੇ, ठीक है। स्टिंग फंक्शन इतने भी काम करता है, क्लियर है। फिर से हम यहाँ पे आते हैं, नीचे आ जाओ, चेक ए स्टिंग, ठीक है। कहता ग्रीप वन नेम का एक फंक्शन हैगा, कैरेक्टर प्रेजेंट इन दिस स्टिंग। अच्छा, ग्रीप नेम का आप फंक्शन यूज करके ना पता कर सकते हो कि जो मैंने लिखा हुआ है टेक्स्ट उसके अंदर क्या ये वाली वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। जैसे यहाँ पे देखो इनका ना ट्रू एंड फॉल्स में आंसर आएगा, मे बी इनका ट्रू एंड फॉल्स में आंसर आएगा। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे जब आप आओगे ना, देखो यहाँ पे एच ग्रीप 1 लिखा, ग्रीप 1 लिखने के बाद यहाँ पे लिखा टेक्स्ट, कौन सा टेक्स्ट फाइंड करना है, कौन से टेक्स्ट को पता करना है, तो हमने उसके डबल कोट्स के अंदर लिख दिया कि एच को पता करना है। क्या एच स्ट्रिंग नेम के वेरिएबल में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, तो यहाँ पे वेरिएबल का नेम दे दिया, तो यहाँ पे देखो आंसर आया है ट्रू, करता है उसके अंदर वर्ड। नीचे दिया गया हेलो, हेलो वर्ड क्या एग्जिस्ट करता है, तो वो भी करता है, ट्रू है, ठीक है। नीचे आ जाओ, क्या एक्स वैल्यू है इसके अंदर, बिल्कुल भी नहीं है, नहीं है तो फॉल्स आंसर आ गया।
तो ग्रीक वन नेम का फंक्शन हम यूज करेंगे पता करने के लिए कि जो हमने टेक्स्ट दिया हुआ है क्या उसके अंदर कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं। ठीक है, जैसे हम अपने कोड के अंदर आ जाते हैं, अपने कोड के अंदर हमें पता करना हो तो जैसे मैं नंबर के लिए अगर पता करना चाहती हूँ तो नंबर के लिए भी पता कर सकते हैं। तो नंबर के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ग्रीप लिखा था ना, ग्रीप वन, ये देखो आ गया फंक्शन, अपने आप फंक्शन का नेम आ जाता है, ग्रीप वन लिखा। मैंने बोला पता करना है, क्या पता करना है, मैंने बोला वन को पता करना है, वन को किसमें से पता करना है, मैंने बोला str में से पता करना है। ठीक है, अब ये मैंने नंबर दिया हुआ, मुझे नहीं पता नंबर पे काम करेगा कि नहीं, बोल रहा है वन लिखा हुआ है। अगर मैंने बोला अच्छा ये बताना क्या कहीं पे 10 लिखा हुआ है, 10 वैल्यू एग्जिस्ट करती है, एंटर बटन क्लिक करोगे, बोल रहा है नहीं 10 वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। और कैरेक्टर के लिए भी ऐसे ही काम करने वाला है। आप यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया NLCI Q, ठीक है। अब उसके बाद में इसको सिलेक्ट करवा के हम इसको यहाँ पे बोलेंगे कि क्या आई वैल्यू, आई कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। कंट्रोल एंटर करोगे तो बोलेगा क्या आई नॉट डबल कोट्स में तो लिखा हुआ, अच्छा सॉरी, ये आई हमें डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये है हमारी स्ट्रिंग वैल्यू। क्या उन्हें बोलना, हाँ ट्रू, यस एग्जिस्ट करता है, क्लियर है ना फंक्शन। फिर आप आ जाना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਬਾਈਨ ਟੂ ਸਟ੍ਰਿੰਗ, ਪੇਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਹੀ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੱਸਦਾ।